function of graffiti expressions. This is the second year of this exhibition, and the response to this exhibition, as I can see, is overwhelming. मराठीत असं म्हटलं जातं की परमेश्वर हा एक अतिशय उत्कृष्ट कलाकार आहे. निसर्गरूपी चित्र या कलाकाराने सृष्टीच्या रूपानं एक अतिशय उत्कृष्ट चित्र रेखाटलेलं आहे. I would like to repeat the thing in English as well. It is said that the colors in the picture are like human emotions. The colors in all these pictures are like various human emotions, and the artists are great. So I would like to start the program with a big round of applause for all the artists. Thank you, ladies and gentlemen, and we are very honored as Graffiti Expressions that we have honorable guests with us today, Mr. Charuhas Pandit, Prabhakar Wadekar, Shashikant Shukla, and Mr. Balapuri. Mr. Shashikant Shukla will be joining. Mr. Satyendra Shukla will be joining us in 5 minutes time, but still will proceed with the program. About Graffiti Expressions, I would like to say that the Graffiti Expressions was started by Mr. Vishal Shinde in August 2006, and ever since then the growth has been remarkable. Almost 550 students learning at this various branches of this Graffiti Expressions at Aund as well as in Pimple Saudagar. More than one of the students has gone on to produce his own solo exhibition, as it is called in the language of arts. Mr. Vishal Shinde has himself completed GD Diploma in Commercial Arts. Now I would request Mr. Vishal Shinde to felicitate our chief guest today, Mr. Prabhakar Wadekar, Charuhas Pandit, and Mr. Balapuri. Of Chintu, along with Charuhas Pandit, both of them have been remarkably, they have set the tone for Chintu. With the Chintu, सकाळमध्ये पब्लिश होणारा Chintu आहे आपण सगळ्यांचा प्रोत्साह आहे. He was won many competitions of BMCC in direction, writing, and he is also a pupil of Nutan Marathi Vidyalaya. Charuhas Pandit, he is also the creator of Chintu, co-creator along with Mr. Prabhakar Wadekar. He has completed his education from Abhinav Kala Mahavidyalaya, and the most remarkable achievement for him, I would like to say, is all the textbooks from standard 4 to 8, all the illustrations are done by him. So big round of applause for all of them. And Mr. Ravindra Balapuri, he is the Director of Arts, Dean of Okay. Mr. Satyendra Shukla, Director of Sumeru Infosystems Private Limited. I am very sorry, sir. Mr. Satyendra Shukla, Director of Sumeru Infosystems Private Limited. Now I would like to request our chief guest to share few words with us, Mr. Charuhas Pandit. तर मला असं मोठ्यांनी बोलायची सवय नाही, कारण प्रभाकर नाटकातला आहे, मी काही नाटकातलं नाहीये, पण माझं बोलणं तुम्हाला ऐकू येईल अशी आशा करतो. सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांचं अभिनंदन की आम्ही आल्यावर हे सर्व प्रदर्शन बघितलं आणि अतिशय उत्तम चित्र काढलेली आहेत. प्रत्येक चित्रात एक भावी चित्रकार बघायला मिळतोय.
आणि अनेक सिनियर सिटीजन्स पण आहेत या इथे, तर त्यांनी सुद्धा यात भाग घेतलाय. आणि मला वाटतं ग्राफिटी हे एक चांगलं काम करते. म्हणजे यातले सगळेच पुढे जाऊन प्रोफेशनल चित्रकार बनतील असं नाही, पण चित्रकलेची दृष्टी असलेले नागरिक बनतील याची मला खात्री आहे. कारण ही चित्रकलेची दृष्टी आहे ती सर्वात महत्वाची असते. कारण आपण कधीही बाहेर गेलो की बघतो की म्हणजे सध्या पुण्यात काय, भारतात काय, एकूण सार्वजनिक सौंदर्य हा एक चिंतेचा विषय झालेला आहे. आणि चित्रकलेची आवड असलेले, सौंदर्यदृष्टी आवड असलेले पुढचे नागरिक या इथे निर्माण होत आहेत. याबद्दल मी ग्राफिटीचं अभिनंदन करतो. इथले सर्व शिक्षक आहेत त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि तुम्ही उत्साहाने भाग घेताय त्याच्याबद्दल तुमचंही अभिनंदन करतो. आम्ही पण लहानपणी असेच वेगवेगळ्या चित्रकला स्पर्धांना जायचो. त्याचा पुढे आम्हाला खूप मोठेपणी फायदा झाला. एकतर चिंटू करताना झालाच, पण विनोद सुचतानाही झाला. उदाहरण सांगतो की एकदा आम्ही एक चिंटू केला होता की चिंटूचे पप्पा बाहेर चाललेत आणि चिंटू पप्पांना विचारतो, पप्पा येताना मला एक रंगाची पेटी आणा. पप्पा म्हणतात, अरे मागच्या आठवड्यातच आणली होती ना. चिंटू म्हणतो, पण त्यानंतर 2 चित्रकला स्पर्धा झाल्या. पप्पा म्हणतात, मग म्हणून काय आलं? म्हणतो, आता कुठलेही रंग वेगवेगळे ओळखू येत नाहीये. म्हणजे आपण जे काम करत असतो त्याचा कुठेतरी कुठे ना कुठे फायदा होत असतो. अजून एक आम्हाला नेहमी विचारलं जातं की तुम्ही चिंटूची मैत्रीण मिनी भांडकुदळ का दाखवता. खरं तर मिनी भांडकुदळ नाहीये. आम्हाला लहानपणी ज्या मिन्या भेटल्या ना त्या अशा होत्या. पण मिनी आजच्या जमान्याची तरुणी आहे. मिनी आजच्या जमान्याची तरुणी आहे आणि त्यामुळेच मिनीला आम्ही अग्रेसिव्ह दाखवतो. एक चिंटू केला होता की चिंटू म्हणतो, मिने पप्पांनी मला रंगवायचं भारी पुस्तक आणलंय. मिने बघते वगैरे म्हणते, अरे खरंच भारी आहे रे, पण तू उगाच रंगवून खराब करू नकोस. कारण तिलाही माहिती आहे की चिंटूची फिरकी कशी घ्यायची. म्हणजे या अलीकडच्या ज्या मुली आहेत, म्हणजे आम्हाला एक नेहमी विचारलं जातं की चिंटूचे पप्पा तुम्ही बावळट का दाखवता. खरं सांगू का, पप्पा लोक आम्ही बावळट दाखवत नाही. पप्पा लोक आहे तिथेच राहिलेत, आयाच स्मार्ट झाल्यात. आणि त्यामुळेच त्या अतिशय मुलांचे काहीतरी वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज चालू ठेवण्यासाठी सतत प्रयत्न करत असतात. मुलांचं प्रमोशन करण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यांना वेगवेगळ्या क्लासेसना, कोर्सेसना घालत असतात. आणि या स्मार्ट आयांमुळेच भारताची पुढची पिढी अतिशय स्मार्ट होत चालली याची आम्हाला खात्री आहे. अजून एक आता हा विषयच निघालाय म्हणून एक चिंटू सांगतो आणि भाषण संपवतो. हल्ली सुट्ट्या लागल्या की वेगवेगळ्या क्लासेसच्या जाहिराती येतात. म्हणजे वेगवेगळी उन्हाळी शिबिर असतात, समर वेकेशन कॅम्प्स वगैरे असे असतात. तर चिंटूची आई पप्पांना म्हणते, अहो वाचलत काय, एका क्लासची जाहिरात आलेली आहे समर वेकेशन कॅम्पची. तिथे काय काय शिकवतात, कराटे शिकवतात, माउंटेनिअरिंग शिकवतात, हॉर्स रायडिंग शिकवतात, शिवाय काव्य वाचन, नाटक सगळं काही शिकवतात. आपण चिंटूला घालूया का त्यात? पप्पा म्हणतात, काय एवढं सगळ्याचा काय उपयोग आहे का, मी कुठे काही शिकलो, काय फरक पडला. आई म्हणते, असं कसं, चिंटूला आपल्याला स्मार्ट बनवायचं आहे ना. मला वाटतं आपण मुलांना काही वेळा स्मार्ट करण्याच्या नादात काही वेळा जरा जास्त त्यांच्यावर आपले काही लागत असतो. पण मुलांना असंच या कलेच्या माध्यमातून फुलू द्या. अभ्यासा व्यतिरिक्त ही आवड त्यांची उत्तम रीतीने जोपासा आणि तुम्ही ती जोपासत आहात याबद्दल अभिनंदन. धन्यवाद. Before going to Mr. Prabhakar Wadekar, I would like to call upon Mr. Satyendra Shukla, please.
everyone. First of all, I congratulate all the small kids who are present here, the parents who have got them up to this crafty expression. Dignitaries available on the dais. A very good evening to everyone. I would take a permission to speak in Hindi. For me, it will be much comfortable and much convenient to convince the small kids who are present here. जब मैं इस प्रदर्शनी को देखा तो मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आई। अगर ईश्वर मेरे सामने आज होते थे और मुझसे कहते थे कि एक बार मांग, केवल एक ही बार, जिंदगी में एक ही बार तुझे मिलेगा, एक ही बार मांग, तो कौन सा मांगेगा? तो शायद मैं एक ही चीज मांगता था कि मेरा बचपन मुझे लौटा दो। I always remember my days जब मैं स्कूल में था तो पेंटिंग के बहुत शौक, एलिमेंट्री तक गया, उसके बाद पिताजी ने कहा नहीं मेरे पास जिंदगी भर पेंटर बनेगा क्या, कुछ आगे बन, साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन। दुनिया भर की थियरी बचपन से। कुछ जस्ट 2 दिन पहले एक घटना सुनाता हूँ, सचमुच सच्ची घटना। पड़ोस में हमारे पड़ोस में एक आदमी रहते हैं, छोटा सा बच्चा उनका 8 साल का, दूसरी कक्षा में पढ़ता है। पता है कि ये पेंटिंग के लिए उसको प्राइज मिला था। वो दौड़ते हुए मेरे घर में आया, बताने लगे प्राइज मिला है हमें। एंड रियली आई वाज वेरी मच हैप्पी टू सी दैट बॉय फर्स्ट टाइम स्माइलिंग, और इतना खुश, इतनी इंतज़ाज़म, इतना चमक उसके चेहरे पे। मैं दौड़ते हुए घर में गया, उसके माँ बाप को कहा कि आपने पार्टी नहीं की, इतनी बड़ी सी बात हुई, पार्टी नहीं किया। उन्होंने केवल एक ही बात की, कौन सा बहुत बड़ा 30 मार्क कर लिया है, हाँ दूसरे में फेल हुआ है, तीसरे में फेल हुआ है, पेंटिंग में नंबर 1 हुआ तो क्या हुआ? ये हमारी मानसिकता है। ये हम सब लोग ना अपने मन में ही मोनालिसा की पेंटिंग बना के मोनालिसा को खत्म कर देते हैं, बाहर निकलने नहीं देते हैं। यही कारण है कि 1000 डॉक्टर बन जाते हैं, 1000 इंजीनियर बन जाते हैं, पर 1000 लियोनार्डो दा विंसी नहीं बनता। एमएस हुसैन की पेंटिंग 8 लाख करोड़ में बिकती है। एग्जीबिशन होते तो बड़े बड़े मॉडल्स जाते हैं, फिल्म स्टार जाते हैं, साइन किया जाता है, माधुरी दीक्षित भी जाती है वहां पर। हाँ, हमारा छोटा सा बच्चा घर का पेंटिंग बनाता है तो उसके लिए कोई स्फूर्ती का स्थान है। अरे काय झालं मोठेपणा त्यागमध्ये काय, अरे काय मोठेपणा त्यागमध्येच मोठेपणा, आपण छोटेपणा करतो त्याला छोटं करून। We are kids, not they are the kids. This is कैसे कहते हैं ना, child is the father of a man. We remain the child, they become our father. But we try to suppress. We try to suppress. आर्ट ये जो शब्द है आर्ट, अगर इसको ध्यान से देखेंगे, आर्ट में भले 350 साल पुराना शब्द है, पर कला ये हजारों साल पुराना। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, पर्शिया, अरेबिया, हिंदुस्तान, हर जगह आप देखिए हजारों से हजारों साल पुराना है। यहाँ तक कि अजंता गुफाओं की में पेंटिंग यदि आप देखोगे, जहाँ से विश्व भर के कलाकार आते हैं, वो पेंटिंग की सराहना के लिए आते हैं। पेंटिंग की अभिव्यक्ति केवल ये नहीं कि स्कूल की किताबों में बनाया और स्कूल के स्टैंडर्ड के साथ खत्म हो गया। पेंटिंग की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कम्युनिकेशन। सबसे पहले कम्युनिकेशन की व्यक्ति, चाहे आके लक्ष्मण हो, आप लोग यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी है, आप एक चीज देखिए, इससे आपको इसकी परिभाषा मिल जाएगी। जिन लोगों को पेंटिंग की परिभाषा नहीं पता, उन्हें पेंटिंग की परिभाषा क्या है, अगर ध्यान से देखोगे, समय निकाल के देखोगे, आपको पेंटिंग की परिभाषा निकलेगी। पेंटिंग इज डिफाइंड एज, पेंटिंग की परिभाषा बहुत सुंदर सिंपल शब्द में अगर मैं कहूँगा, ये आपकी कल्पना और भावना की रचना है, बस कल्पना और भावना की। इसे और कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता। जो इमेजिनेशन कर सकता है वो हमसे कई गुना ऊपर है। एक इंजीनियर केवल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल के तक सोच सकता है। हम लोग अपने सॉफ्टवेयर कंपनी जब कोई डिजाइन बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसका कोडिंग तक ही हमारा लेवल जाता है। पर इनकी जो खासियत होती है, जो पेंटर्स की खासियत होती है, ये लोग वो कल्पना कर सकते हैं जहां पर हमारी कल्पना बंद हो जाती है। ब्लैंक पेज पर भी को घोड़ा और हाथी दिख जाते हैं, बल्कि हमें तो इंसान भी नहीं दिखते। ये फर्क है। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वे। सेकंड, अभिव्यक्ति। आपको पता है कि ये पेंटिंग का रियल पर्पस क्या क्या है? न केवल इसे एग्जीबिशन आने के लिए लगाना, ये वन ऑफ द पार्ट। इससे साइकोलॉजिकल हीलिंग तक होती है। इससे साइकोलॉजिकल हीलिंग तक होती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता, आप करके देख लीजिए आपके घर में। आई कैन एश्योर यू एनीथिंग। When I go for some time for the वास्तु कंसल्टेंसी, और लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे घर में मियां बीवी के झगड़े होते रहते हैं, बच्चे में झगड़े होते रहते हैं। बिल्कुल ही नहीं होती, काफी तकलीफ होती है। आई रिकमेंड देम ओनली वन थिंग, एक भगवान कृष्ण की पेंटिंग लगा दीजिए राधा के साथ, एंड यू सी इन 30 days the problem will get solved। इतनी ताकत होती है पेंटिंग में।
और वो कद्र की कीमत नहीं है। मेन चीज है कि हमारे कद्र की कीमत नहीं है। डॉक्टर इंजीनियर बनाना हम लोग ज्यादा गर्ववती महसूस करते हैं, पेंटर बनाना नहीं महसूस करते हैं। ये हमारा कारण है, हमारा पिछड़ेपन का। मैं कहता हूं कि अगर शिवाजी छत्रपति शिवाजी बने, इट इज नॉट कि कैसे बने, अगर बिकॉज ऑफ मां जीजाबाई थी इसलिए बने। अर्जुन अगर धनुर्धर अर्जुन इसलिए बने क्योंकि उनको द्रोणाचार्य जैसे गुरु मिले। इफ अगर आप जैसे पेरेंट्स ले जाते हैं ग्राफिक एक्सप्रेशन या ऐसी कोई जगह में जाते हैं इंस्टीट्यूट जहाँ पे उनको पढ़ाया जाए और उनके कला को अभिवादन किया जाए, मैं कहता हूँ कि हर स्टूडेंट एक कलाकार है, जन्मजात कलाकार है, जन्मजात विजयी है। हम उसे पनपने नहीं देते, हम उसे अपना गला घोट देते हैं। हम लोग डॉक्टर नहीं बन पाए उसको डॉक्टर बनाते, हम इंजीनियर नहीं बन पाए हम उसको इंजीनियर बनाते हैं, हम उसको आईएएस नहीं बन पाए हम उसको आईएएस बनाते हैं। क्यों? आप कलाकार नहीं बन पाए इसलिए उसको कलाकार नहीं बनाना चाहते। आपने कभी सोचा नहीं? केवल रोजी रोटी की सिवा हम लोग सोचते नहीं इसके बारे में। कहां तक जाएगा पेंटिंग, कहां तक जाएगा पेंटिंग? सीधा सीधा कंपैरिजन, सीधा सीधा कंपैरिजन। उसका बच्चा ऐसा करता है, इसका बच्चा ऐसा करता है, मेरा बच्चा कैसा करेगा? अरे आपका बच्चा 10 गुना अच्छा दूसरे से। कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए, उस दिन आपका बच्चा टॉपर हो जाएगा क्लास में। लिख के देता हूं मैं। घर में बच्चा होता है, शरारत करता है, वो छोटा उदाहरण बताता हूं, सबके घरों में ये सब होता होगा। तो जैसे माँ आती है घर में, बच्चा शरारत करता है, बच्चा कहता है माँ मैं कहाँ हूँ, छुप जाते थे, उसकी जाके छुप जाते, माँ मैं कहाँ हूँ। अब जो माँ जिसे जो कहती है अपने आप को मैं रियल माँ हूँ, मैं सच्ची माँ हूँ, मैं इसकी जन्मदाता हूँ, वो माँ देखो कैसे बिहेव करती है। तो वो कबर्ड के पीछे ढूंढेगी, फिर टीवी के सेट के पीछे ढूंढेगी, उसको पता है कि उसका बच्चा कहाँ छुपा है, फिर भी ढूंढने की कोशिश करेगी। अरे तू यहाँ है, नहीं माँ नहीं मिला। फिर वो किचन में जाती है, अरे नहीं मिला, कहाँ मेरा राजा, कहाँ मेरा राजा, माँ ढूंढो, मैं कहाँ हूँ ढूंढो। उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी एंथुसियाज्म बढ़ती रहती है। माँ जानती है सब कुछ क्योंकि वो सच्ची माँ है। वो जानती है उसका स्पिरिट, उसकी खुशी ही जो उस क्षण की है वही उसकी माँ की सच्ची खुशी होती है। फिर अचानक फिर जाके उसको पीछे पकड़ के फिर बच्चा उसे पकड़ लेता है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो क्षण जब माँ और बच्चा जब एक साथ होते हैं, एक साथ आलिंगन करते हैं, एक दूसरे को गले लिपटते हैं, तो वो खुशी दुनिया में विश्व में बढ़कर किसी भी खुशी से बढ़कर है। अब दूसरा स्थिति देखिए, मॉडर्न हाउसवाइफ जिसे हम लोग कहते हैं परिभाषा, वो जितने भी के वाले सीरियल देखते हैं, पता नहीं मुझे किस चीज से लगती है, तो ज्यादातर उसी में नट फट सच के उसी में स्टाइल में रहती है। अपने बच्चे को भी एकता कपूर बोलती है। अब बच्चा छुपा, वही स्थिति वही सिचुएशन, सब कुछ वैसे रहेगा। माँ मैं कहाँ हूँ ढूंढ, माँ मैं कहाँ हूँ ढूंढ, आजा पीछे तो आजा बाहर निकल के। क्या प्रेम रह गया, क्या वात्सल्य है उसे, क्या ममता है, बच्चा कब खुश होगा। ये छोटा सा उदाहरण था, ये सब हमारे घर में प्रैक्टिकल होता है, कोई उदाहरण की जरूरत नहीं। सिर्फ ये कि कंसल्टेंट कौन होता है, व्हाई वी आर कॉल्ड एज कंसल्टेंट, वी आर कंसल्टेंट। में आपने घड़ी से देखिए आपको टाइम पता तो इसलिए कंसल्टेंट हो, सीधी सी बात है। ये घटना आपके घर में घटती है पर हमें इसका महत्व पता नहीं होता। आप इस कला को अगर यहाँ पर रोक दिया, खत्म कर दिया, तो मैं कहता हूँ ये भ्रूण हत्या से बढ़कर कुछ बड़ा पाप नहीं है। If he is willing to learn the painting, inspire him. If you are a real parent. अब अगला स्टेज है कि ये कंप्यूटराइज में जाए, वेब डिजाइनिंग करे, 3D एनिमेशन करे और यहाँ से उसकी रोजी रोटी चालू होती है। आपको सरप्राइज होगा ये जानते हुए कि 18 साल 19 साल लड़का केवल 12वीं पास होता है और केवल वेब डिजाइनिंग कर लेता है। क्योंकि हमारी कंपनी भी है सेट ऑफ वेब डिजाइनर्स, तो वी नो हाउ मच वी हैव टू पे। उनकी सैलरी एक इंजीनियर अगर प्राइवेट अच्छे कॉलेज से निकले तो उसकी सैलरी मैच नहीं कर पाता है। वेब डिजाइनर की कितनी कीमत है आज के डेट में। हमें डिजाइनर मिलते हैं पर पेंटिंग दिमाग के डिजाइनर नहीं मिलते हैं, कला की दिमाग से नहीं मिलते हैं। दिस हाईली डिमांडेड फील्ड। आप जानते हैं जो डिमांड सप्लाई से पूरा व्यापार चलता है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, कीमत ज्यादा है। पेंटिंग की कीमत इसीलिए करोड़ों लाखों में आकी जाती है, पर हम लोग उसको रिसेशन के टाइम पर भी इसकी कीमत कभी कम नहीं होगी। ध्यान रखना, पेंटिंग की कीमत रिसेशन में भी कम नहीं होती, हर चीज की कीमत गिर जाएगी। This is all what I have to say, and thank you very much for giving your valuable time. Thank you.
धन्यवाद सर. After few professional tips about